Name of Almighty Allah, the possessor of majesty and reverence. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is biomagnification, a topic which is related to water pollution. That is one of the causes, one of the effects which are caused by the water pollutants. So it itself it in turn belongs to the सेकेंड यूनिट दैट इज वाटर पोल्यूशन. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है? इससे पहले कि हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ए लिटिल बिट रिगार्डिंग द यूट्रोफिकेशन और हाइपरट्रोफिकेशन. तो इसी के साथ एक और कंसेप्ट रिलेटेड है विच इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम्स और विच इज caused ड्यू टू द वाटर पोल्यूटेंट्स, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. तो इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं. तो सो फार एज दिस बायोमैग्निफिकेशन इज कंसर्न, biomagnification it is a process or it is a phenomenon in which there occurs the accumulation of the toxic chemical substances like pesticides and the heavy metals in the tissues, in the body tissues of the organisms at various trophic levels in a food chain. देखो क्या होता है कि यहाँ पे accumulate होते हैं कुछ toxic substances. They may be in the form of these pesticides or the heavy metals, लेकिन इनकी accumulation बढ़ जाती है along the successive at the successive trophic levels. तो उसी phenomenon या उसी process को हम biomagnification कहते हैं. It is also called bioaccumulation. Bioaccumulation. Sometimes biological concentration. So it is known by different terminologies, but what is this biomagnification now? It is simply the increase or the accumulation of the toxic substances in the tissues of the organisms at the successive trophic levels in a food chain. तो जहाँ तक इस बायोमैग्निफिकेशन का ताल्लुक है कि ये क्यों होती है, आखिर why these toxic substances or these toxic pollutants they may lead to the process of biomagnification, इसके पीछे कारण क्या है? Basically these pollutants, इनके पीछे there are three reasons why these pollutants they become increased at the successive trophic levels in a food chain. इसके पीछे तीन main causes हैं. One, persistence. Actually these pollutants or these poisonous substances, these cannot be broken down by the environmental processes, so they remain persistent here and they may not get degraded or decomposed. As a result of this, they remain persistent. This is why they get accumulated or they get concentrated with at the every successive trophic level. दूसरा reason इसके पीछे ये है कि दूसरा जो कारण है why these substances get accumulated or why these poisonous chemicals they get accumulated in the various trophic levels of a particular food chain. तो दूसरा इसमें यही है कि जो जिसको हम कहेंगे food chain energetics, food chain. देखो इन substances में due to their persistency or due to their persistence nature, they have the tendency that they get increased at the various trophic levels in case of a food chain. तो तीसरा इसके पीछे जो तीसरा reason है why these toxic substances or materials or chemicals they get
bio accumulated or they get accumulated in the tissues of the organisms, वो ये है कि that is हाँ इन हम ये कहेंगे लो और नॉन existent internal degradation. That means कि inside the body these substances are not digested by the organisms, they are not broken down, they are not internally degraded. तो ये भी एक कारण है, they get accumulated in the tissues of the organ. And these are the three main reasons why these poisonous materials or substances they get accumulated in the tissues of these organisms. हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देंगे पॉन्ड इकोसिस्टम की. देखो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो हम डीडीटी दीज पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, पेस्टिसाइड एक पेस्टिसाइड है डीडीटी. देखो अगर हम पानी में देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल वाटर में क्या होती है. अगर हम वाटर में देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन इट इज ओनली 0.003 पार्ट्स पर मिलियन ppm. तो अगर इसके बाद हम देखेंगे जो जू प्लैंक्टन होते हैं, जू प्लैंक्टन में इस डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. इट इज अबाउट 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. अगर फिर हम देखेंगे जो स्मॉल फिशेस होते हैं इनमें इनकी कंसंट्रेशन कितनी होते हैं, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. फिर अगर हम बात करेंगे लार्ज फिशेस में, इसमें इसकी कंसंट्रेशन 2 पार्ट्स पर मिलियन होती है. अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे जो कि फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, इसमें इसकी कंसंट्रेशन इट रीचेस अप टू 5 पार्ट्स पर मिलियन. एंड फ्रॉम दिस it is clear that there is increased level of these pesticides along the various trophic levels of a food chain. देखो पहले इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर इससे बढ़ जाते हैं, then it becomes large and ultimately larger. तो यहाँ हम अगर हम देखेंगे कि कंटिन्यूअसली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं along the food chain, तो इसी को यानी कि इसकी कंसंट्रेशन इसकी एक्यूमुलेशन बढ़ जाते हैं. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन, समटाइम्स बायो कंसंट्रेशन. तो या बायो मैग्निफिकेशन भी हम इसको कह सकते हैं. अब तो अगर हम देखेंगे इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्यों होते हैं, मतलब व्हाट आर द वेरियस कॉजेज व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो उस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो पहले अगर हम देखेंगे कि देयर आर सो मैनी कॉजेज, हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ देम. तो पहला अगर हम देखेंगे तो जो पहला कॉज है वो होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये सब के सब बेसिकली ultimately they are washed into the water bodies, and where they get accumulated in the different organisms which are inhabiting in that very ecosystem. चाहे रिवर होगा, चाहे लेक होगा, चाहे स्ट्रीम होगी, तो इसकी accumulation होती है वहाँ पे, ये बढ़ जाता है.
तो इसी तरह जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे है, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से बहुत सारा वेस्ट और एफलेंट जो निकलता है, इसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ मर्करी, लेड, आर्सेनिक, जिंक होते हैं, एंड दे आल्सो फाइंड देयर वेज into these water bodies whereby they become accumulated or their concentration gets increased in the various organisms at various tropic levels. तो ये एक कारण है इसके पीछे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो दूसरा अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। एक ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट जो है उसको हम बायोसोलिड कहते हैं। बेसिकली बायोसोलिड्स these are the byproducts which are obtained during the treatment of the waste water or the sewage। तो इसमें बहुत मतलब सॉलिड कंटेंट जो इस मतलब बायोसॉलिड के अंदर इट इज रेंजिंग फ्रॉम 15% टू 90% इसमें सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, लाइक मैक्रोन्यूट्रेंट्स इसमें होते हैं फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। इस तरह इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी होते हैं लाइक मैग्नीज, आर्सेनिक, आयरन एटसेट्रा। तो यहाँ तक इन बायोसॉलिड्स का ताल्लुक है। तो इनके अंदर बहुत सारे मतलब अभी तो कुछ हेवी मेटल्स वहां पे मौजूद होते हैं विच आर वेरी पॉइजनस। व्हेन वी यूज दिस बायोसॉलिड्स इन द फॉर्म्स in our farms, in our paddy fields or in our fields, agricultural fields, वहां पे क्या होता है, जो ये poisonous substance और poisonous heavy metals इसके अंदर होते हैं, they get released and ultimately they find their ways into the water, nearby water bodies, like in the ponds and the lakes। तो वहां पे फिर इसकी वो ये क्या करवाते हैं, इनकी बायो एक्यूमुलेशन होती है, बायो कंसेंट्रेशन होती है। तो ये दूसरा कॉज है इसके पीछे। अगर एक और कॉज हम देखेंगे इसके पीछे, वो है प्लास्टिक पोल्यूटेंट। जो हम प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक पोल्यूटेंट्स होते हैं विच आर रिलीज्ड और विच आर एडेड इन आवर वाटर बॉडीज, तो उनसे भी वहाँ हमारा वाटर जो होता है वो पोल्यूट होता है। ये देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड बाय थ्रू द रिसर्च दैट दिस प्लास्टिक इट कंटेन्स ए वेरी poisonous substance which is called bisphenol A। bisphenol A। तो जहां तक इस बिस्फिनॉल ए का ताल्लुक है, तो ये बेसिकली इट इज आल्सो persistent, it does not get degraded biologically or it is non biodegradable pollutant, and it also when it gets added in our water bodies, it may also lead to the phenomena of bioaccumulation or this biomagnification। तो ये भी एक कारण हो सकता है why our bodies are suffering with this very one of the problems, one of the negative impacts of these pollutants, and this is another reason, another cause for this bioaccumulation। तो इसके अलावा एक हाँ एक और मतलब प्रोसेस जो है विच कॉजेज दिस बायो, दैट इज माइनिंग। देखो जब हम माइनिंग के दौरान, माइनिंग यू नो इट इज द प्रोसेस इन विच द मेटल्स एंड द मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैनी मिनरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इस तरह आयरन, मैग्नीज वहाँ पे होता है, दे गेट डिपॉजिटेड, and they may get deposited। After their deposition they may sometimes find their ways into these water bodies whereby they cause this process of bioaccumulation or biological concentration।
So these are were the few causes which are responsible for this process of biomagnification. Now ये इसके मतलब क्या थे causes कैसे होते हैं, what are the factors which are responsible for this process. तो अब हम देखेंगे इसके effects क्या हैं. इफेक्ट्स की जब हम बात करेंगे इफेक्ट्स में देखो पहला इसका इफेक्ट जो है ना दैट इज पहले हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स पे क्या क्या इफेक्ट होता है इसका. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सो फार एज दिस bio accumulation or this biomagnification is concerned, it is caused due to toxic chemicals, toxic substances in the form of pesticides, in the form of heavy toxic metals and other poisonous substances. देखो इनसे क्या होता है, these heavy metals and pesticides in the human beings. किसी वक्त ये मतलब they may also when they may find their way into the body of the human beings, here they may lead to the कैंसर. उनसे कैंसर भी इन ह्यूमन बींग्स में होता है जो ये कंज्यूम करते हैं ये मतलब सी फूड्स को या द एक्वाटिक फ्लोरा एंड फाना जहाँ पे वो कंटेमिनेटेड होती है ड्यू टू वेरियस पोल्यूटेंट्स पर्टिकुलरली दीज पेस्टिसाइड्स एंड दीज पेस्टिसाइड्स एंड दीज हेवी मेटल्स. तो वहाँ पे ये हाँ इसके अलावा इससे क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स में जो कि ये फूड्स कंज्यूम करते हैं जिनमें ये बायो एक्यूमुलेशन होते हैं तो उनकी और फिर जब ये उनके बॉडी में ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स या ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटर होते हैं तो उनमें क्या होता है देखो एक प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे ये होता है कि दे डिट्यूरेट्स द नर्वस सिस्टम. वो बिल्कुल वहाँ पे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल डिट्यूरेट करते हैं तो उसको बिल्कुल वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नर्वस सिस्टम में. तो इसके अलावा इट मे लैड टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द विजन स्पीच हियरिंग ये चीज़ें भी होती हैं इससे. तो ये एक और इफेक्ट है इस बायोमैग्निफिकेशन का और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ह्यूमन बींग्स के ऊपर. तो ये थे कुछ इफेक्ट्स जो कि मतलब हाँ समटाइम्स इट मे लैड to the failure of the kidney when they may find their passage particularly the mercury it is one of the heavy metals. तो उससे क्या होता है when they get past when they find their passage in the body of the human beings and whereby they become accumulated and their accumulation may cause the kidney damage kidney failure brain damage and there will be reproductive problems. तो ये ह्यूमन बींग्स में होता है. अगर हम इक्वेटिक की बात करेंगे इक्वेटिक मतलब जो लाइफ होती है या इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन पे भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि ये देखा गया है दे मे लीड टू द डिक्रीज इन द रिप्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट. वहाँ पे बिल्कुल दे डिट्यूरेट और दे बेसिकली इफेक्ट the effects on the reproduction and the development in the fishes. So yeah, in the aquatic organisms which are consuming these poisonous metals and chemicals. तो एक और मतलब ये देखा गया है कि जो सी बर्ड्स हैं उनकी एग प्रोडक्शन बिल्कुल यहाँ जो मरकरी कंज्यूम करते हैं या आर्सेनिक वो कंज्यूम वहाँ पे करते हैं तो जो उनकी एग प्रोडक्शन है दैट गेट्स हेवीली affected and their egg production that becomes decreased. दिस इज ड्यू टू द जो क्या होता है वहाँ पे जो एग्स बनते हैं उनके शेल्स बहुत वीक होते हैं एंड दे आर वेरी थिन and when they try to hatch these eggs they gets broken down prior to their मतलब prior to their development prior to their मतलब incubation they get us बिल्कुल वो वहाँ पे उनकी जो शेल्स होते हैं नाजुक होते हैं बिल्कुल वीक होते हैं और वो टूट जाते हैं. इस तरह वहाँ पे इनकी एग प्रोडक्शन पूरी तरह से मुतासर होते हैं एंड इनकी पॉपुलेशन इस तरह इम्पैक्ट होते हैं. तो ये एक और रीज़न ये और इसका एक और का मतलब इसका इफेक्ट है इस इक्वेटिक का. तीसरा अगर देखिए फूड चेन पे
फूड चेन में क्या होता है, बेसिकली दीज केमिकल्स और दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस दे मे लीड टू द डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन। बिल्कुल ये फूड चेन्स को डिसरप्ट करते हैं, तबाह करते हैं। वहाँ पे जब फूड चेन्स ये डिसरप्ट करते हैं, जो वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू वर्क प्रॉपरली, टू वर्क इन दिस इकोसिस्टम, पर्टिकुलरली इक्वाटिक इकोसिस्टम। इस तरह जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बुरी तरह से इससे मुतासिर होते हैं। दिस इज अनदर इम्पैक्ट और द इफेक्ट ऑफ दिस। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइज, keeping the gravity of these problems into consideration or into view, there is the need to control, to somehow find the solutions of this biomagnification, how we can solve this problem of biomagnification solutions. हाँ, पहले हमें क्या करना चाहिए? We should avoid the emissions of the heavy metals like mercury, lead, cadmium, arsenic. इनकी बिल्कुल एमिशन को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट अगर तो पूरी तरह से हम नहीं तो लेकिन कम करनी चाहिए। वी शुड रिड्यूस देयर emissions into our water bodies, तो उससे भी हमारे वाटर बॉडीज बच सकते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन का फिनोमेना वहाँ पे फिर कम हो सकता है। जो दूसरा मतलब एक और है मतलब जो कंटेमिनेटेड लोके मतलब कंटेमिनेटेड लोकेल होता है, बिल्कुल we should clean what we actually deposit wastes in our localities, and these contaminants they should be properly cleaned before their disposal, before their discharge into the drains or the water or in the small these streams। तो पहले बिल्कुल हमें इसको क्लीन करना चाहिए। मतलब we should पहले तो हमें कम ये बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट तो पहले इसकी इन चीज़ों की मतलब इन चीज़ों को हमें रिलीज नहीं करना चाहिए। तो एक और मतलब कंट्रोल मेथड ये भी हो सकता, इससे भी कम हो सकते हैं दिस प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। तो एक और है जिसको हम कहेंगे कि जो ट्रीटेड वुड है, हाँ, treated wood is that wood in which we use some chemicals, we add some additives, like there is CCA, chromated copper arsenate, and another chemical ACZA, ammonical copper zinc arsenate. So these are the preservatives, or these are the additives which are just added during the treatment of the wood। ऐसी लकड़ी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ये जो सब्सटेंस हैं दे बेसिकली कंटेन हेवी लोड्स ऑफ द लेड। तो इस लेड से फिर ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में चला जाता है, तो उससे भी फिर ये प्रोसेस ऑफ बायोक्यूमुलेशन होती है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अनदर प्रोसेस ऑफ दिस controlling method or this solutions regarding this is avoid the use of lead painted। लेड पैंट्स जो होता है इनको बिल्कुल यूज नहीं करता है। इनिशियली ड्यूरिंग द प्रायर टू 1980s द पैंट्स they were consisting this heavy concentrations of these leads। तो ये पैंट्स वहाँ पे यूज होते थे, क्योंकि लेड एक खतरनाक पोल्यूटेंट है, एक बहुत डेंजरस एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट। तो इससे बायोक्यूमुलेशन होते हैं, इसके साथ साथ फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बोथ इन द इक्वेटिक मतलब जो वहाँ पे बायोटा होता है, पर्टिकुलरली जो फाना होता है, तो उस पर अल्टीमेटली फिर ये इंसान पे भी इफेक्ट करता है। तो ऐसे पैंट्स को बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए जिनमें ज़्यादा लेड होता है। तो लेड का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड यूज ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड,
जो हम आजकल देखते हैं, जितने भी जो हमारी जो प्लम्बिंग दिस मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें हम पॉलीविनाइल क्लोराइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी पाइप्स होते हैं, जो हमारी वो बीप कॉक्स होते हैं वगैरह, तो उसमें इसका ज़्यादा है। हमें तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, इसको भी हमें बिल्कुल अवॉइड, या तो अवॉइड नहीं, सॉरी, ये इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, या तो कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब इन पाइप से हमारा जो ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर निकलता है, तो ये उस दौरान बहुत सारे ये मतलब केमिकल्स, पॉइजनस इसके साथ ऐड होते हैं, एंड दे गेट्स इनटू आवर बॉडी, और दे गेट्स डिपॉजिटेड, दे कॉज एक्यूमुलेशन इन आवर टिश्यूज। तो इस तरह वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एंड दिस वर द फ्यू ऑफ द मैथड्स which we by which we can somehow mitigate this problem or this phenomena of bioaccumulation or the bioconcentration. And there are many more methods which we can adopt to avoid or to reduce or to check this process of the bioaccumulation. तो आज तो हमने कुछ बात आपके साथ शेयर की रिगार्डिंग दिस वेरी प्रॉब्लम, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन और द बायो एक्यूमुलेशन. Inshallah, in the next coming topics, we will proceed ahead, and we will discuss some more interesting topics regarding the EVS subject. So till then, Allah Hafiz, fi amanillah.